Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is for class 3. Subject is mathematics. Exercise 2C. This exercise has been given at pages 70 and 71. Students, after watching this lesson, you will be able to multiply a number by 0, by 1, by 10 and by 100. Multiplying, converting ones and tens, hundreds, and solve question number 4, 5, 6 and 7. Let's start our lesson. First of all, I am going to teach you about multiplication of three numbers. Let's see an example. Here she is Sarah. And Sarah has chosen three numbers, 2, 3 and 5. What happens when three numbers are multiplied? Students, when we multiply three numbers, we can put them in any order. The product will remain the same. स्टूडेंट्स जब हम थ्री नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, लेकिन ऑर्डर चेंज करने से उसका आंसर चेंज नहीं होता, आंसर सेम आता है. ठीक है, लेट्स सी कि सारा कैसे इन थ्री नंबर्स को मल्टीप्लाई करती है. फर्स्ट शी मल्टीप्लाइज दैम लाइक दिस. 3 multiply 5 multiply 2. 3 5s are 15 and 15 2s are 30. Okay, now she multiplies them in a different order like this. 5 multiply 2 multiply 3. 5 2s are 10 and 10 3s are 30. Now she tries them again in yet another order. 3 multiply 2 multiply 5. 3 2s are 6 and 6 5s are 30. यहाँ आपने देखा कि सारा ने इन थ्री नंबर्स को 2, 3 एंड 5 को थ्री डिफरेंट ऑर्डर्स में लिखा. नंबर्स का ऑर्डर चेंज किया उसने, लेकिन इसके प्रोडक्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं आई है. प्रोडक्ट विल रिमेन द सेम. ओके, लेट्स मूव अवर एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 4. Multiply these numbers, placing them in three different orders. What is the product in each case? तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं. हर क्वेश्चन में थ्री नंबर्स हैं और इन थ्री नंबर्स को हम थ्री डिफरेंट ऑर्डर्स में लिखेंगे और फिर इसका आंसर चेक करेंगे कि क्या इन तीनों ऑर्डर्स में आंसर सेम है. लेट्स सी द ए पार्ट. 4, 5 एंड 6. सबसे पहले हम इसको इसी ऑर्डर में लिख लेंगे. 4 multiply 5 multiply 6. 4 5s are 20 and 26 are 120. Now we multiply them in a different order like this. 4 multiply 6 multiply 5. सबसे पहले 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे. 4 6 are 24 and 24 5s are 120. Okay, now we multiply them again in yet another order like this. 6 multiply 5 multiply 4. 6 5s are 30 and 34s are 120. Let's see another part, B part. 3 8 and 10. First we write 3 multiply 8 multiply 10. Now 3 multiply 8. 3 8s are 24 and 24 10s are 240. Okay, now we multiply them in a different order like this. 3 multiply 10 and multiply 8. Now 3 10s are 30 and 38s are 240. Okay, now we multiply them again in yet another order
8 multiply 10 and multiply 3. 8 tens are 80 and 83s are 240. ओके, तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इन तीनों ऑर्डर्स में आंसर सेम है, 240, 240 and 240. Now I'm going to teach you about multiplying by 10. Let's see an example. 30 multiplied 10. He is Adil and he is trying to understand multiplying by 10. Students, when a number is multiplied by 10, the number itself shifts one column to the left, leaving 0 at one's place. ओके, यानी जब हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉलम्स में वो नंबर लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है और वंस कॉलम में हमारे पास 0 बच जाता है. लेट्स सी स्टूडेंट्स, 30 को हम एबेकस में शो करते हैं तो 0 वंस प्लेस में आ जाता है और 3 टेंस में. ठीक है, लेकिन जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 हंड्रेड्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, यही हमने सीखा कि जब हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर खुद लेफ़्ट की तरफ मूव हो जाता है. ठीक है, और वंस प्लेस में हमारे पास 0 बच जाता है. जैसे कि यहाँ पे 30 टेंस से हंड्रेड्स की तरफ मूव हो गया और वंस कॉलम में हमारे पास 0 बच गया. तो आंसर हमारे पास आ गया 300. इट मीन्स कि 30 multiplied 10s are 300. Okay, let's move our exercise. Question number 5. Write the products in your notebook. Here A part is 7 multiplied 10. 7 को आप easily 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 7 के टेबल 10 तक पढ़ेंगे तो इसकी प्रोडक्ट आ जाएगी. तो let's see the B part, 23 multiplied 10. तो स्टूडेंट्स आपने सीखा कि जब हम किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वन कॉलम लेफ़्ट की तरफ मूव हो जाता है और वंस कॉलम में हमारे पास 0 आ जाता है. लेट्स सी कि 23 को एबेकस में अगर हम शो करें तो वंस कॉलम में हमारे पास 3 है और टेंस में 2. ठीक है, ये 23. लेकिन जब हम 23 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 वन कॉलम लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होगा. लाइक दिस कि 23 टेंस से शिफ्ट होकर हंड्रेड्स में आ गया, यानी 2 हंड्रेड्स वाले कॉलम में, 3 टेंस वाले कॉलम में और वंस में हमारे पास 0 बच गया. ओके, तो 23 multiply 10s are 230. Let's see another part. C part, 321 multiply 10. एबेकस में हम देख सकते हैं कि वंस वाले कॉलम में हमारे पास 1 है, टेंस में 2 और हंड्रेड्स वाले कॉलम में 3 है. तो जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हंड्रेड से शिफ्ट होकर थाउजेंड में आ जाएगा. लाइक दिस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स 4 कॉलम्स हैं. वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स. 321 को जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो वो 1 कॉलम लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, इसलिए थाउजेंड्स वाले कॉलम में 3 आ गया और 2 हंड्रेड्स वाले कॉलम में और 1 टेंस वाले कॉलम में और वंस वाले कॉलम में हमारे पास 0 बच गया. ओके, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? तो 321 मल्टीप्लाई टेंस आर 3210. ओके, now question number 6 is fill in the blanks. Here A part is 96 multiplied dash is equal to 960. मीन्स कि 96 को किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स 960 में वंस कॉलम में हमारे पास 0 है. ये 0 हमें ये बताता है कि ये नंबर
10 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जब कोई भी नंबर 10 से मल्टीप्लाई होता है तो वो खुद लेफ़्ट की तरफ मूव हो जाता है और वंस कॉलम में हमारे पास 0 आ जाता है। ओके, तो इट मीन्स के 96 मल्टीप्लाइज 10 इज इक्वल टू 960। ओके, नाउ बी पार्ट इज 10 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू 520। अब 10 किस से मल्टीप्लाई हो कि 520 आंसर आ जाए, मीन्स के 10 को हम 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 520 आ जाएगा, क्योंकि 52 लेफ़्ट की तरफ मूव होगा तो ये वंस कॉलम में हमारे पास 0 आ गया, इसलिए ये नंबर 52 से मल्टीप्लाई हो रहा है। नाउ सी पार्ट इज़ 148 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू 1480। तो 148 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1480 आ जाएगा। ओके, नाउ डी पार्ट इज़ 35 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू 350। यस, यहाँ भी हम आंसर हमारे पास 10 आ जाएगा। 35 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 आ जाएगा। नाउ ई पार्ट इज़ 10 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू 630। सो 10 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 630 आएगा। यस, 63 से, बिकॉज 63 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो वो लेफ़्ट की तरफ मूव कर जाएगा, यानी 6 हंड्रेड्स में आ जाएगा और 3 टेंस में, और वंस कॉलम में हमारे पास 0 बचेगा। ओके, एफ पार्ट इज़ 10 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू 5160। यहाँ हम 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यस 516 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 5160 आ जाएगा। ओके, जी पार्ट इज़ 389 मल्टीप्लाई, यस 10, 389 multiplies 10 is equal to 3890. Okay, now H part is 10 multiply dash is equal to 950. Yes, 10 multiply 95 is equal to 950. Now I part is 10 multiply 8. Yes, 10 8s are 80. Okay, now J part is 10 multiply dash is equal to 7010. Now 10 multiply 701 is equal to 7010. Now K part is 27 multiply 10 is equal to 270. Okay, and 73 multiply 10 is equal to 730. Is that clear? Sarah's simple method. She is Sarah and it is her simple method. आइए अब देखते हैं कि सारा कैसे मल्टीप्लिकेशन करती है। सबसे पहले कॉलम में है टू फाइंड द प्रोडक्ट 22 मल्टीप्लाई 10। सबसे पहले सारा 22 को 1 से मल्टीप्लाई करती है। 22 1s are 22। उसके बाद 22 को 10 से मल्टीप्लाई करती है, तो 22 10s are 220। बिकॉज किसी भी नंबर को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर लेफ़्ट की तरफ मूव हो जाता है और वंस कॉलम में हमारे पास 0 आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 मल्टीप्लाई 20। अब 22 को 20 से सारा कैसे मल्टीप्लाई करेगी। 22 को हमने 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो 20 में हमारे पास 2 10s हैं। 2 10s हैं, इसलिए 22 को सबसे पहले सारा 2 से मल्टीप्लाई करेगी। 22 2s are 44 और 44 जब आंसर आएगा तो 44 को 10 से मल्टीप्लाई करेगी। 44 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, यस 440। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 मल्टीप्लाई 30। 30 से कैसे मल्टीप्लाई करेगी 22 को सारा, कि 22 को सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करेगी, क्योंकि 30 में 3 10s हैं। सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करेगी, जो आंसर आएगा उसको फिर 10 से मल्टीप्लाई करके
इसकी प्रोडक्ट फाइनली फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सी कि 22 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 66। अब 66 को 10 से मल्टीप्लाई करेगी तो 66 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 660। ओके, नाउ 22 मल्टीप्लाई 40। 22 को 40 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सबसे पहले 22 को सारा 4 से मल्टीप्लाई करेगी, बिकॉज 40 में 4 टेंस हैं, तो सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई करेगी, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेगी। तो 22 को 4 से मल्टीप्लाई करने से आंसर आ गया हमारे पास 88, बिकॉज 22 4s are 88। नाउ 88 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 880। यस, 22 मल्टीप्लाई 50। अब 22 को 50 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 50 में सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 टेंस हैं, 22 को सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 22 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 110। नाउ अब 110 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से, आंसर आ जाएगा हमारे पास 1100। ओके, नाउ लेट्स मूव अवर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 7, फॉलो साराज सिंपल मेथड टू फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है 8 मल्टीप्लाई 20। सारा के सिंपल मेथड को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करती थी सारा कि 8 को 20 से मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेगी, क्योंकि 20 में 2 टेंस हैं, तो 8 को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आ जाएगा उसको फिर 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेट्स सी, 8 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10। 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारे पास 16, बिकॉज 8 2s are 16। अब 16 को 10 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? यस, 160, बिकॉज 16 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 लेफ़्ट की तरफ मूव हो जाएगा और वंस कॉलम में हमारे पास 0 आ जाएगा। ओके, लेट्स सी द बी पार्ट। 6 मल्टीप्लाई 90। 6 को 90 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 90 में हमारे पास 9 टेंस हैं, तो इट मीन्स कि 6 को सबसे पहले हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 9s are 54। 54 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? यस, 540। लेट्स सी द सी पार्ट। 10 मल्टीप्लाई 60। 10 को 60 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम देख रहे हैं कि 60 में 6 टेंस हैं, तो सबसे पहले 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 6s are 60 एंड 60 10s are 600। ओके, नाउ what will you do? Yes, your homework. Do practice question number 4, 5, 6 and question number 7. Okay. Thanks for watching this video. Allah Hafiz.